Very good morning students. Now we comes on fourth lecture of first order first degree differential equation, that is ordinary differential equation. And in previous lecture what we have seen? We have seen a variable separable method, then the next is a homogeneous, and now we comes on the reducible to homogeneous differential equation. अब reducible to homogeneous differential equation कौन से फॉर्म में रहते हैं? How we can reduce to homogeneous? If an equation of the form dy by dx equals to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2. अगर ऐसे फॉर्म में आपका इक्वेशंस रहता है then that is called as a reducible to homogeneous differential equation. What about that? a1 a2 b1 b2 c1 c2, these are nothing but constant. These are constants and we have to reduce that equation in terms of homogeneous. अब homogeneous में reduce करने के लिए यहाँ पे दो condition check करनी पड़ती हैं. That is if first condition is if a1 upon b1 is equals to a2 upon b2. अगर ये not equals to, if a1 by a2 should not be equals to b1 by b2. Sorry, a1 by b1 is not equals to a2 by, there is something correction in the formula. If a1 by a2 means that ratio of a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then you have to use here substitution. That is ये है फर्स्ट केस यहाँ पे, और इस फर्स्ट केस में अगर ऐसी कंडीशन आ रही कि a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then you have to make a substitution. That is we have to put small x is equals to capital X plus h and small y is equals to capital Y plus k. This h and k are constant. We have to find the values of that. Then that's why we can get dx equals to d of capital X and dy equals to d of capital Y. And therefore what happens? We can replace dy by dx by d of capital Y by d of capital X in that given equation. Suppose that is in equation number 1. So what changes happen in equations 1? We see 1 by 1 and therefore 1 implies, देखो 1 में क्या changes होंगे? ये टर्म रिप्लेस हो जाएंगे d of capital Y by d of capital X से, that is equals to a1 as it is रहेगा आपका, that is replaced by capital X plus h plus b1 as it is रहेगा capital Y plus k plus c1 upon यहाँ पे a2 into capital X plus h plus यहाँ पे b2 into capital Y plus k plus c2. So in this way we get that. So that gives dy by d of capital X is equals to a1x plus b1y plus c1 in bracket into a1h plus b1k plus c1 in another bracket in denominator a2x plus b2y plus c2 in one bracket we will take a2x plus b2y plus c2. Sorry, we have to take just here a1x plus b1y, a2x plus b2y, and in another bracket there is a2h plus b2k plus c. So in this way we get that. So ऐसे फॉर्म में आपको मिल जाएंगे ना. What you have to put? You have to put that we consider that term as a1h plus b1k plus c1 is equals to 0. We consider it as a 0. Suppose यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएंगे. That is a1x plus प्लस में रहेंगे सब साइन यहाँ पे भी सब क्या होंगे? प्लस में ही टर्म होंगे आपकी. That is a1x plus b1y plus a1h plus b1k plus c1. तो हमने x और y की टर्म पहले लिख ली यहाँ पे, और जो कांस्टेंट की टर्म्स है देन वी राइट इन अनदर ब्रैकेट. सिमिलरली इन डिनोमिनेटर आल्सो a2x plus b2y plus a2h plus b2k plus c2. So finally what you have to do? We have to put that bracket as a 0. So we put a1h plus b1k plus c1 equals to 0, and second bracket we use a2h plus b2k plus c2 equals
terms of h and k. So by solving that values, solving that equation, we get h and k. And also there is one another formula you can use, but by the calculator you get the equation in terms of h and k, and by using calculator you can get the values of that h and k. So we get h and k. अब यहाँ पे अगर इन दोनों को इक्वेशन 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में देखो क्या चेंजेस हो जाएंगे. देयरफॉर इक्वेशन 2 implies, तो इक्वेशन 2 में क्या चेंजेस होंगे, दैट मींस dy by d of कैपिटल x इज इक्वल्स टू सिंपली यहाँ पे रहेगा a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y, एंड दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज homogeneous differential equation. And then we use the substitution. What is substitution? That y is equals to v into x, and then we can solve as a problems which we have solved in a previous lecture. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. सबसे पहले तो आपको देखना है कि a1 by a2 should not be equals to b1 by b2. अगर ऐसे फॉर्म में है, you use the substitution small x is equals to capital X plus h, स्मॉल y कैपिटल y प्लस के. यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx. यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे. देन यहाँ पे x इज रिप्लेस बाय कैपिटल x प्लस h, y इज रिप्लेस बाय कैपिटल y प्लस के. फिर हमने यहाँ पे x और y की टर्म एक ब्रैकेट में ली, एंड द कांस्टेंट टर्म्स वी टेक इन अनदर ब्रैकेट. वी पुट दैट ब्रैकेट एज अ 0 व्हिच इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h and k. So by solving these equations we get the values of h and k, and therefore value we put that is equals to 0. So we get dy by dx equals to this form. So which is a different homogeneous differential equation, and then we use here y equals to vx. तो ये हो गई एक फॉर्म. अब we will see the another. Now अगर यही इक्वेशंस है आपका, ये आपको सेकंड केस कंसीडर करेंगे. यहाँ पे इक्वेशन यही है. अगेन दैट a1 a2 b1 b2 c1 c2 these are constant. बट यहाँ पे चेंजेस क्या है, दैट रेशियो a1 by a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 by b2. अगर ऐसे फॉर्म में है तो a2 b2 से कोई एक टर्म कॉमन निकलते हैं, सपोज दैट इज अ यंग, और वो ऐसी टर्म कॉमन निकलती है कि यहाँ पे a2 की जगह a1 आ जाएगा और b2 की जगह b1 आ जाएगा. मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट रिपीट हो जाती है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है. इसके लिए कुछ तो भी, दैट इज a1x प्लस b1y इक्वल्स टू सपोज वी पुट t. ये यहाँ पे हम t पुट करेंगे, दैट इज t प्लस c1 अपॉन m इंटू t प्लस c2, एंड यहाँ पे dy by dx रिप्लेस हो जाएंगे आपका by the another derivative differential coefficient, and that equations comes which converts, ये किस में कन्वर्ट्स हो जाता है, which converts in variable separable form, and then we get the solution of that equation. So in these are two types of reducible to homogeneous differential equations. We see one by one problems on both the types. Now I have written one problem here. What is that? That is 3y minus 7x plus 7 into dx plus 7y minus 3x plus 3 into dy equals to 0. अब सबसे पहले हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, dy by dx इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2. अब ऐसे फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि दैट इज अ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. एक नोट हमेशा ध्यान में रखना. क्या नोट ध्यान में रखना है आपको, कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन अ लीनियर ऑर्डर. लीनियर ऑर्डर मीन्स इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ये फर्स्ट ऑर्डर में रहेगा. ये कौन से फॉर्म में रहेगा, इसका फॉर्म ध्यान में रखना, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2. ऐसे फॉर्म में रहेगा. या फिर हम इसको, इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हर एक जो पावर रहेगा यहाँ पे x y का, वो क्या रहेगा, 1 रहेगा. दैट शुड बी, इट इज इन अ लीनियर डिग्री और इट इज इन अ लीनियर ऑर्डर. यहाँ पे हर एक टर्म आपको दिख रही है कि x और y की टर्म क्या है, सिंगल पावर के फॉर्म में. अगर ऐसे पावर के फॉर्म में आपको टर्म दिख रहे, देन इट इज अ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी dy की टर्म यहीं पे रख दी. सिंपली माइनस 3x को स्टार्टिंग में ले लिए, माइनस 3x प्लस 7y प्लस 3 इंटू dy इक्वल्स टू, ये टर्म ट्रांसफर कर दी RHS को. सो देयर इज अ माइनस 7x
तो ये टर्म अगर यहाँ पे चली जाएंगी तो यहाँ पे चले जाने के बाद ये माइनस हो जाएंगे। सो माइनस ऑफ आई पुट माइनस टू द ब्रैकेट माइनस ऑफ और माइनस 7x स्टार्टिंग को ले लिया मैंने, देन प्लस 3y ले लिया प्लस 7 इंटू डी एक्स। सो दैट गिव्स dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। सो दैट गिव्स 7x माइनस 3y माइनस 7 अपॉन माइनस 3x प्लस 7y प्लस 3। सो इस तरह से हमें मिल गया हमारा dy बाय डी एक्स। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 ऐसे फॉर्म में है। सो यू हैव टू फाइंड a1 b1 c1। सो a1 हमारे यहाँ पे क्या रहेगा 7, b1 माइनस 3, c1 इज अ माइनस 7, देन a2 इज अ माइनस 3, b2 इज अ 7 एंड c2 इज अ 3। उसके बाद हम रेशियो चेक करेंगे a1 बाय a2 क्या होगा 7 बाय माइनस 3, b1 बाय b2 माइनस 3 बाय 7। अब अगर दोनों का रेशियो देखेंगे, ये रेशियो और ये रेशियो दीज आर डिफरेंट, दैट मींस a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 बाय b2। अब अगर ऐसे फॉर्म में है सो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, यू हैव टू पुट हियर स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। वी हैव टू यूज दैट सब्स्टिट्यूशन। सो दैट गिव्स dx इज इक्वल्स टू d ऑफ कैपिटल X and dy is equals to d of capital Y. So we have to use that substitution in that problem. अब प्रॉब्लम, ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अब ये सभी चेंजेस हमें क्या कहाँ पे करने हैं, इक्वेशन 1 में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज इन इक्वेशन 1, ओके, एंड आई विल ड्रॉप दैट। So here I have written that when we put dx is equals to d of capital X, dy equals to d of capital Y. So that gives dy by dx, जो आपका इक्वेशन था इक्वेशन 1, you have to use here। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने ये पुट किया, यहाँ पे x की जगह स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h माइनस 3 इंटू स्मॉल y कैपिटल Y प्लस 3 माइनस 7, डिनोमिनेटर में भी वैसे। अब हर एक टर्म को यहाँ पे सेपरेट कर दिया, 7x प्लस 7h माइनस 3y माइनस 3k माइनस 7 in denominator minus 3x minus 3h plus 7y plus 7k plus 3. Then finally what we do, we combine the terms of x and y in one bracket, that is 7x minus 3y, then 7h minus 3k minus 7, then here is a minus 3x plus 7y, then here is minus 3h plus 7k plus 3। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें x और y के फॉर्म में चाहिए, जो अनदर ब्रैकेट रहती है कांस्टेंट की, वी पुट इक्वल्स टू 0। तो ये ब्रैकेट एक 0 हो जाएंगे और ए भी ब्रैकेट। अब दोनों अगर ध्यान से देखोगे तो बोथ आर इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ h एंड k, और ये दोनों इक्वेशंस h और k के फॉर्म में यू कैन सॉल्व इट एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। और यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, सो व्हाट यू हैव टू यूज हियर फंक्शनल कैलकुलेटर। सबको पता है कि कैसे यूज करना है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। दैट इज 7h माइनस 3k माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 3h प्लस 7k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन यू गेट द वैल्यूज ऑफ h इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू 0। सिमिलरली देयर इज अनदर मेथड टू गेट द वैल्यूज ऑफ h एंड k। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं कि h के लिए फॉर्मूला b1c2, आपने सभी वैल्यूज निकाली रहती है a1 b1 c1 a2 b2 c2। सो फॉर्मूला h के लिए b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पे सिंपली b की जगह a आएगा। सो a1 c2 माइनस a2 c1, और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम है। अब ध्यान में रखने के लिए थोड़ा सा मैंने स्टिक देखो कैसे यूज किए, h इज इक्वल्स टू bc12 माइनस bc21, मतलब b का 1 c का 2, b1 c2 माइनस b2 c1। सो bc12 माइनस bc21 अपॉन AB12 माइनस AB21। यहाँ पे k के लिए d की जगह a, सो k इज इक्वल्स टू AC12 माइनस AC21 अपॉन AB12 माइनस AB21। तो ऐसे फॉर्म में इसको शॉर्ट एक नोट्स या रिमेंबर के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक मेथड है। अब जैसे मैंने यहाँ पे फिर वैल्यूज पुट की b1 की, b1 इज अ माइनस 3, c2 इज अ 3 माइनस b2 इज अ 7, c1 इज अ माइनस 7 in denominator, a1 is a 7, then यहाँ पे b2 is a 7, then minus of a2
A2 is a -3 and B1 is nothing but a -3. तो -3 into 3 it become a -9, minus minus plus 47 in denominator 7 into 7 49 minus minus plus and then -9. तो यहाँ पे एक आ जाएगा 40, डिनोमिनेटर में भी 40, so 40/40 we get a 1. So similarly we get the value of H1 by that formula also. Similarly when you put k equals to, आप सभी k के यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे A1, C2, B1, B2 सभी के, तो ऐसे फॉर्म में आएगा A1 is a 7, C2 is a 3, minus A2 is a -3, C1 is a -7 in denominator. We put A1 B2 minus A2 B1. So after calculating, numerator become 21 minus 21 0, denominator 40. So 0/40 we get a 0. So in this way हमें दोनों की भी वैल्यू मिलती है H and K की. So finally हमें H और K की तो वैल्यू मिल गई है. अब आगे हम सॉल्व करेंगे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन. So we will see 1 by 1 here. So आगे कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, देखो अगर ये टर्म 0 हो गई तो we get dy by dx that should be equals to 7x minus 3y upon minus 3x plus 7y. तो अब ये हो गया हमारा होमोजीनियस, ये xy के फॉर्म में और ये dy by dx के फॉर्म में, which is homogeneous differential equation. So obviously we use here substitution, we put capital Y equals to Vx, so that implies dy by dx equals to v plus x into dv by dx, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था. अब ये हमारा इक्वेशन 3 है. सपोज यहाँ पे हम तो ये चेंजेस करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, देखो अब 3 में क्या चेंजेस होंगे, दैट कैन बी रिप्लेस बाय v प्लस एक्स dv by dx इक्वल्स टू यहाँ पे 7x माइनस ऑफ y इज रिप्लेस बाय 3 इंटू vx, इन डिनोमिनेटर देयर इज अ माइनस 3x प्लस 7 इंटू vx. अब यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन निकलने वाला है. तो x dv by dx v प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो 7 माइनस 3v अपॉन यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, सो -3 प्लस 7v. एक्सेस गेट कैंसिल, न्यूमरेटर से x निकला तो 7 माइनस 3v, डिनोमिनेटर से x निकला तो -3 प्लस 7v. सो इन दिस वे वी गेट दैट. अब आ जाते हैं उस साइड एंड देन वी सिंप्लीफाई दैट प्रॉब्लम. So in this way what we do here, we take a common here x, we get that term 7 minus 3v upon minus 3 plus 7v. We write here, ये जो v था we transfer that v to that side, so it become a minus v. We take here cross multiplication, so minus minus become a plus 3 into v 3v. Again next is a second term plus 7v minus v, so that become a minus 7v square. Denominator as it is, that is 7v minus 3. यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल होने के बाद 7 कॉमन निकल जाएगा, दैट इज 1 माइनस v स्क्वायर. सो आई राइट दैट हियर, ये टर्म हमने इधर ले ली, सो 7v माइनस 3 न्यूमरेटर में चला गया एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस v स्क्वायर. 7 एज इट इज उसी जगह रख दिया, x को इधर ट्रांसफर कर दिया, सो 1 बाय एक्स, dx भी उधर ट्रांसफर हो गया तो डिनोमिनेटर का dx न्यूमरेटर में आ गया. तो इस तरह से टर्म तो सेपरेट हो गए, पर ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू यूज ए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, सो यू कैन गेट द आंसर. यहाँ पे ये जो टर्म है, आई कंसीडर दैट टर्म इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a माइनस b a प्लस b, यहाँ पे मैंने लिखा लीनियर फैक्टर है, सो a अपॉन 1 माइनस b प्लस b अपॉन 1 प्लस b. अब आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखे हैं, तो हाउ टू गेट a एंड b यू शुड नो वेरी वेल. तो ये आपके लिए, आपके होमवर्क के लिए यू हैव टू फाइंड a एंड b. तो a और b की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दी. ये आता है आपका 2 और b आता है -1. तो इस तरह से ये जो टर्म्स है आपकी यहाँ पे, दैट इज योर इंटीग्रेशन, सपोज 4, यू हैव टू यूज दैट हियर इन इक्वेशन 4 एंड देयरफॉर इक्वेशन 4 इम्प्लाइज चेंजेस. देखो क्या हो जाएंगे अब इक्वेशन 4 में, दैट इज 2 अपॉन 1 माइनस b माइनस 5 अपॉन 1 प्लस b, ये सेपरेट हो जाएंगे इंटू dv इक्वल्स टू 7 बाय एक्स इंटू डी एक्स. यहाँ पे करेंगे हम ऑन इंटीग्रेटिंग. अब ये सेपरेट ही हो गया तो डायरेक्टली यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा.
सो 2 इंटू 1 माइनस वी, सो 2 इंटू 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन क्या पॉसिबल है वहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका लॉग, दैट इज 1/x। आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन रहता है log x, बट यहाँ पे 1 माइनस वी है, सो दैट इज अ लॉग ऑफ 1 माइनस वी, बट जो कोएफिशिएंट रहता है 1 माइनस वी का दैट इज अ -1, यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस वी का तो वो आ जाएगा वहाँ पे माइनस, या फिर आपको इसको इस टर्म को आप v माइनस 1 भी लिख सकते हैं, v माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सो डायरेक्टली यू कैन टेक v माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ v माइनस 1। ओके, ऐसे फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हैं, इफ यू टेक द टर्म कॉमन फ्रॉम दैट, सो दैट गिव्स माइनस ऑफ v, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉमन, सो दैट गिव्स माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ v माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका -5 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस वी इक्वल्स टू 7 इंटू लॉग एक्स। अब सभी अगर लॉग में ले रहे हैं सभी टर्म, सो वी कंसीडर दैट एज ऑल्सो लॉग ऑफ सी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लॉगरिथम की, सो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ v माइनस 1 रेज टू -2, यहाँ पे ये माइनस है तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, सो 1 प्लस वी रेज टू द पावर 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका log ऑफ x रेज टू 7 अपॉन c। सो फाइनली दोनों तरफ से log निकल जाएंगे, सो यू गेट अ v माइनस 1 रेज टू -2 अपॉन 1 प्लस v रेज टू 5 इक्वल्स टू x रेज टू 7 बाई c। बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपको रिप्लेस करना है x और v को, जो जो आपकी x और v की वैल्यू है, यू हैव टू पुट हियर द वैल्यूज ऑफ x एंड y हियर। तो आपके पास क्या है, v इज इक्वल्स टू क्या है, v इज इक्वल्स टू कैपिटल x बाय y, सो यू हैव टू यूज हियर दैट वैल्यू, ये हो जाएंगे आपकी x बाय y माइनस 1 रेज टू -2 इन डिनोमिनेटर 1 प्लस x बाय y एंड दैट इज इक्वल्स टू x रेज टू 7 बाय c। सो फाइनली अगेन आपको क्या करना है, कैपिटल x क्या है आपके पास, कैपिटल x इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h, दैट इज h आपका 1 है, तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, बिकॉज h इज इक्वल्स टू क्या है 1 है। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k, पर k 0 है, so simply small y is equals to capital Y, you can write this in this way। so finally ये टर्म आपको वहाँ पे रिप्लेस करनी है, तो ये काम आपके लिए छोड़ देती हूँ, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे x माइनस 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा y को स्मॉल y माइनस 1 इन डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म आएंगे आपकी 1 प्लस x की वैल्यू है आपकी x माइनस 1 अपॉन स्मॉल y, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस 1 रेज टू द पावर 7 अपॉन c। सो इन दिस वे यू कैन फाइनली गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y। सो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम, अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं सेम मेथड पे, अगर वी कैन रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, कैसे लिख सकते हैं हम, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy बाय dx इक्वल्स टू, ये टर्म इधर चली जाएंगी, सो दैट बिकम 2x प्लस 3y माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 6x प्लस 9y प्लस 6। सबसे पहले तो रेशियो चेक करना है हमें, a1 है हमारा 2, b1 है हमारा 3, c1 इज इक्वल्स टू -1, a2 इज इक्वल्स टू 6, b2 इज इक्वल्स टू 9 एंड c2 इज इक्वल्स टू 6। सो दैट गिव्स a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2/6 दैट इज इक्वल्स टू 3, और b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/9 दैट इज यहाँ पे भी सॉरी 2/6 दैट इज 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/9 दैट इज ऑल्सो 1/3। अब अगर दोनों भी देखेंगे दैट इज 1 एंड द सेम, मतलब क्या मिल रहा है हमें कि a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 मिल रहा है, मतलब ये आ रहा है आपका सेकंड केस में प्रॉब्लम। अब अगर ये सेकंड केस में आ रहा है तो ध्यान से अगर देखेंगे तो प्रॉब्लम ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ से आप अगर 3 कॉमन निकालोगे तो यू गेट 2x प्लस 3y। सो वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, यहाँ पे देखो क्या चेंजेस होंगे इक्वेशन 1 में, दैट गिव्स dy बाय dx इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 2x प्लस 3y माइनस 1
अब ये जो रहते हैं टर्म x और y की, दैट इज 2x प्लस 3y, सेम टर्म आपको यहाँ पे मिलती है डिनोमिनेटर में व्हेन योर रेशियो इज इक्वल, व्हेन योर रेशियो इज इक्वल, रिमेंबर दैट थिंग। तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y मिल जाएगा आपको, इज प्लस 6। ओके, अब ये जो टर्म सेम है, वी पुट हियर दैट इज वी पुट 2x plus 3y is equals to t. So that implies we have to differentiate on both sides with respect to x. Differentiate with respect to x. तो अगर differentiate with respect to x करेंगे तो यहाँ पे 2 plus 3 into dy by dx is equals to dt by dx. So that gives 3 dy by dx is equals to dt by dx -2, ऐसे फॉर्म में मिल जाएगा आपको। सो दैट इम्प्लाइज dy by dx इक्वल्स टू 1/3 इंटू dt by dx -2। इस तरह से हमें dy by dx की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन 2 में। अब देखो क्या चेंजेस होंगे। सो दैट गिव्स 1/3, देयरफॉर इक्वेशन यहाँ पे हमें लिखना है इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, सो 1/3 dt by dx माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू यहाँ पे t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 6, t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इज यहाँ पे इससे और कुछ भी कॉमन निकल सकता है, ये 3 ट्रांसफर हो जाएगा टू दैट साइड। सो दैट इम्प्लाइज dt बाय dx माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 अगर ट्रांसफर होगा तो न्यूमरेटर में दैट इज 3t माइनस 3 अपॉन 3t प्लस 6, और ये -2 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये +2 हो जाएगा आपका। सो फाइनली व्हाट यू गेट दैट गिव्स 3t माइनस 3 प्लस 6t प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज 12 अपॉन डिनोमिनेटर में 3t प्लस 6। ओके, सो ऐसे फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो फाइनली व्हाट यू गेट dt बाय dx इज इक्वल्स टू 3t प्लस 6t बिकम 9t, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 प्लस 12 दैट इज अगेन 9 एंड इन डिनोमिनेटर 3t प्लस 6। तो न्यूमरेटर से आपको मिलता है कॉमन 9, सो t प्लस 1, और डिनोमिनेटर से आपको मिल जाएगा 3 कॉमन, सो दैट गिव t प्लस 2, सो दैट बिकम 3। सो इन दिस वे यू गेट दैट सिंप्लीफिकेशन। और अब ये टर्म हम लिखेंगे। सो व्हाट टू डू देन नेक्स्ट, सो दैट गिव्स dt बाय dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2। ओके, अब ये dt की टर्म इधर है तो हम dt की सब t की टर्म इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, दैट गिव्स t प्लस 2 है तो इसको स्प्लिट कर देंगे t प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ये टर्म इधर आ जाएंगी दैट इज t प्लस 1 इंटू यहाँ पे रहेगा आपका dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये dx इधर चला जाएगा। अब ये टर्म सेपरेट हो सकती है इजीली, इसको एक टर्म कंसीडर करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। सो वी गेट 1 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 व्हेन यू सेपरेट द डिनोमिनेटर इनटू dt इज इक्वल्स टू 3 dx। अब करो इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट यू गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू dt इक्वल्स टू 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx plus integration constant c. So finally what you get, see that 1/1 I will write on that side. So finally we integrate, on integrating what you get यहाँ पे 1 into dt, so 1 into dt का इंटीग्रेशन t प्लस 1 upon t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log of t प्लस 1 इक्वल्स टू 3 into x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फाइनली जो हमारे t की वैल्यू थी, t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे हम 2x प्लस 3y रिप्लेस कर देते हैं प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस 3x इक्वल्स टू c। ऐसे फॉर्म में हम इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। तो इस तरह से आपको उसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, या फिर और इसको हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, उस साइड हम log c भी ले सकते हैं। So you can again simplify that term। और ऐसे भी लिखा आपने तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
So that is your answer. Okay. So in this way you get the answer of that integration. So hope you understand that problem when your ratio should be equal. So और एक प्रॉब्लम इस पे आप लोगों को मैं I have written one problem again on the same type. So first तो हम यहाँ पे as it is लिख लेंगे dy by dx is equals to 3x minus 2y plus 1 upon 6x minus 4y plus 1. अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपके आंखों को नजर आ जाएंगे कि न्यूमरेटर में 3x minus 2y है, डिनोमिनेटर में 6x minus 4y. तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे. मतलब यहाँ से अगर 2 कॉमन निकल रहा है दैट इम्प्लाइज a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू यू गेट 1 by 2. ऐसे मिल जाता है अगर यहाँ से 2 निकल रहा है. यहाँ से 3 अगर निकलता है तो यू गेट 1 by 3. अब अगर आपको चेक करना है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 by a2 इज नथिंग बट आपका क्या हो जाएगा, a1 इज 3 बाय यहाँ पे 6 b1 by b2 दैट इज -2 अपॉन -4. So you get a 1 by 2. Here is also 1 by 2. तो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकल रहा है दैट मीन्स योर रेशियो इज 1 by 2. ये ध्यान में रखना, आप दोनों सेम आ रहे हैं रेशियो. दैट इज a1 by a2 is equals to b1 by b2 and that is equals to 1 by 2. So we put here 1 by 2. So you have to use that value in equation 1 and therefore equation 1 implies क्या होगा यहाँ पे equation 1 में changes फिर that gives यहाँ पे हमें अब सब्स्टिट्यूशन करना है. अगर रेशियो सेम आ रहा है तो यहाँ से कॉमन निकलता है, लगे तो एक स्टेप हम ज़्यादा कर लेंगे यहाँ पे डी therefore dy by dx इक्वल्स टू 3x minus 2y plus 1 अपॉन यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, आपका 2 कॉमन निकल जाएगा. सो दैट मीन्स 3x minus 2y plus 1 ऐसे फॉर्म में आ जाएगा. अब जो ब्रैकेट सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, उसके लिए हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन. तो वी पुट 3x minus 2y is equals to t. So that implies यहाँ पे हमें करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ. हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 minus 2 into dy by dx is equals to dt by dx. So finally हमें मिल जाएंगे dy by dx की वैल्यू दैट इज dt by dx minus 3 और ये -2 जो है आपका इधर चला जाएगा दैट बिकम -1 by 2. सो इस तरह से हमें मिलता है dt by dx -1 by 2 in bracket dt by dx -3. So in this way we get the values of that dy by dx. या फिर और एक कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये माइनस है यहाँ पे लगा देंगे तो फाइनली यू कैन गेट dy by dx. So that is equals to dy by dx. क्या किया हमने, दैट -2 dy by dx एज इट इज रखा, dt by dx -3 को इधर ट्रांसफर कर दिया. उसके बाद ये -2 भी चला गया तो -1 by 2. So that gives dy by dx और दैट कैन बी रिटन एज dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन अगर आप ब्रैकेट को लगा देंगे तो 1 by 2 इंटू ये माइनस हो जाएगा ये प्लस. सो दैट इज 3 minus dt by dx. सो इन दिस वे वी गेट द वैल्यूज ऑफ दैट dy by dx. अब यहाँ पे हम पुट करेंगे वी गिव इट इक्वेशन नंबर 2 एंड देयरफॉर दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 2 इम्प्लाइज. देखो क्या चेंजेस होंगे फिर इक्वेशन 2 में, दैट मीन्स 1 by 2 3 minus dt by dx इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका t plus 1 अपॉन 2t plus 1. ओके, सो दैट गिव्स, देन ये टर्म यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे. सो दैट कैन बी रिटन एज 3 minus dt by dx. ये जो 2 है आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2t plus 2 अपॉन 2t plus 1 ऐसे फॉर्म में आ जाएगा. So that implies 3 ये टर्म हम इधर ले लेंगे या फिर 3 को उस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं दैट इज 2t plus 2 अपॉन 2t plus 1 minus 3 that is equals to minus dt by dx. Okay, so in this way you can write that
अब यहाँ पे देखो चेंजेस क्या होगा, दैट इम्प्लाइज 2t प्लस 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 2t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस dt बाय dx। तो यहाँ पे ये टर्म मिलने के बाद दैट टर्म ये 3 ट्रांसफर करके -3 माइनस डी टी बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमने ले लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 2t प्लस 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 2t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे उसको सेपरेट कर दिया, दैट इज 2t प्लस 2 माइनस 60 माइनस 3 अपॉन 2t प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। सो 2t माइनस 60 दैट इज माइनस ऑफ 40, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन, हमने अगर यहाँ से कॉमन निकाल ली तो माइनस ऑफ 1 प्लस 40 और यहाँ पे माइनस रहता है डिनोमिनेटर में 2t प्लस 1, तो ये माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस। तो इस तरह से ये प्लस हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, dt को यहीं रख दिया और ये टर्म उधर ट्रांसफर कर दी, तो ये न्यूमरेटर में चली जाएंगी, दैट इज 1 प्लस 2t और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4t dt और dx आपका इधर आ जाएगा, सो dx एज इट इज रह जाएगा। तो अब लिखने के बाद क्या है, LHS इज इक्वल्स टू RHS है, तो RHS की जगह हम LHS लिख सकते हैं और LHS की जगह RHS। तो वैसे ही मैंने किया है, ये टर्म अगर इधर चली जाएंगी तो यहाँ पे dt और ये टर्म रहेंगी और यहाँ पे dx रहेगा। तो फाइनली आई विल राइट इन दिस वे कि dt की टर्म यहाँ पे लिख दी और dx। उसके बाद अब ये 1 प्लस 2t है, तो उसको मैंने स्प्लिट किया, 1 को 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2t और फिर 1/2 ये टर्म और ये टर्म, यहाँ से हमने 1/2 कॉमन लिख लिया और 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 4t, क्योंकि 1/2 प्लस 40/2 दैट इज 2t। सो फाइनली यू गेट द सेम टर्म प्लस दैट 1/2। सो इस तरह से एडजस्ट हो गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4t है। अब आप डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे और इजीली यू कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ये आपको करना है, दैट इज फॉर योर होमवर्क। इसका आंसर मैं आप लोगों को लिख, सो यहाँ पे मैंने आंसर लिख के दे दिया है आपको। सॉरी यहाँ पे v नहीं है, यहाँ पे t लिया है हमने, बुक में v था तो इसलिए यहाँ पे v लिख दिया मैंने। सो डोंट वरी अबाउट दैट, देयर इज अ t। सो t के फॉर्म में आंसर आएगा और फाइनली यू हैव टू रिप्लेस दैट t के लिए हमने जो भी सब्स्टिट्यूशन रखी थी दैट इज 3x माइनस 2y, तो वो सब्स्टिट्यूशन आपको वहाँ पे यूज़ करनी है और यूज़ करने के बाद यू गेट द आंसर फाइनली इन टर्म्स ऑफ x and y. So hope you understand that problem also. So here I have written one problem, that is dy by dx plus 2x plus 3y upon y plus 2 equals to 0. So that implies dy by dx is equals to minus 2x minus 3y upon y plus 2, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। फिर यहाँ पे a1 की वैल्यू है -2, b1 है आपका, a2 है 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में a2 मतलब x की टर्म में है तो कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। b1 इज a -3 एंड b2 इज अवर 1, so -3/1 that is -3। तो अगर रेशियो देखेंगे तो these are different, so that gives a1 by a2 should not be equals to b1 by b2। अब अगर ऐसे फॉर्म में नहीं है, so you have to use the substitution, small x is equals to capital X plus h and small y is equals to capital Y plus h। So in this way you can put that substitution। और previous starting का जो प्रॉब्लम हमने किया था बस उसी तरह से ये भी प्रॉब्लम आपको करना है, that is for your homework। I will write the answer of that। और इसका जो आंसर आता है, your answer should be in the form of y plus 2x minus 4 whole square equals to c into in bracket x plus y minus 1। तो ये आंसर है that you have to find out। So that is for all about the reducible to homogeneous differential equation। फॉर्म हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्म कैसा रहता है, that is dy by dx is equals to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2। तो दो केसेस रहते हैं इसमें, पहली रहती है a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 एंड सेकंड इज a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 एंड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन दैट। सो ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं ये आप हमेशा ध्यान में रखना एंड देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम करते हैं स्टॉप और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।